Okay, so let's understand quadratics from this particular video. Here we'll be learning about what is reflection, what is shift. Let's understand. A ball is thrown upward, okay? जैसे ही upward reach करेगी from a platform, its height above the ground in meters after t seconds is modeled by. तो दे आर सेइंग कि आफ्टर अगर 1 सेकेंड का निकालना है कि 1 सेकेंड के बाद हाइट कितनी हुई, सो यू विल जस्ट पुट टी की जगह 1 एंड यू विल डू 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16. 2 सेकेंड्स के बाद कितनी हुई तो आप 2 पुट कर दोगे, 3 के बाद कितनी हुई आप 3 पुट कर दोगे. तो दे हैव गिवन यू अ फंक्शन of how much height will it be in a particular time, where t represents time and h represent height in meters and t is in seconds. कि कोई बॉल को उन्होंने थ्रो करा है तो how much is the time and how much will it be the height. जैसे if you see यहाँ से उन्होंने थ्रोन किया upwards and फिर वो downwards चली जाएगी, right? So this is the particular graph also which they have showcased and this is the function. Then it says initial height of the ball before throw. So before throw में आपके पास height right जाननी है. तो before throw का मतलब है कि टाइम शुरू ही नहीं हुआ है, right? So you will also write this that if we have to calculate, short form में लिख लो, if you have to calculate for before throw, then you put time as 0 seconds. Just write down, if you have to calculate before throw, you put time as 0 seconds. So let's take the function and put the time as 0 seconds. We have ht is equals to minus t minus 3 whole square plus 16. and अगर before throw आपको height जाननी है, so that means of course time will be 0. So 0 minus 3 whole square plus 16. So यहाँ पे you will be left with -3 because 0 में से अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो you get the same number, -3 square and बाहर also we have minus plus 16. So -3 square is 9 and you have -9 plus 16. because -3 square जो आपने किया तो you are getting 9 but बाहर माइनस तो है, right? So -9 plus 16 is 7. So that means that after like just 0 seconds before throw, जब आपने थ्रो नहीं भी किया था तो कितनी हाइट थी, it was 7 meters. So what did you learn? 7 units or 7 meters also is the better way. Why? Because of course h is measured in meters, उन्होंने already कहा था. So what did we learn from this? That when we have to calculate before throw something, then of course time is 0 seconds, तो आप 0 put कर दोगे, right? And we calculate the answer. Then in the B part it says maximum height, okay? कितनी maximum height the ball reaches and the time at which this occurs. तो जब कोई चीज़ maximum निकालनी है, when we have to calculate maximum, we will write the note. When we have to calculate the maximum, तो we see the vertex form. तो उसमें हम h, k को put कर देते हैं that it is maximum. I will tell you how. I'll tell you a hint as well. The unit is t minus 3 whole square plus 16. तो मैं आपको हिंट देती हूँ, जब भी आपको कोई चीज़ मैक्सिमम निकालनी होती है तो आपके साथ दिस इज़ द फॉर्म ऐसे होता है, ये t माइनस एच, इसको हम h बोलते हैं, इसको हम k बोलते हैं, ठीक है? तो वर्टेक्स फॉर्म होती है h, k. तो मैक्सिमम हाइट अगर जाननी है, मैक्सिमम टाइम अगर जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है. दिस इज़ 3 minus 3 ओवर हियर, सो यू विल जस्ट पुट t as 3, इसका ऑपोजिट साइन. जो ये -3 है तो हमारा 3 हो जाएगा, मतलब सेकेंड्स क्या हुए 3, ठीक है? एंड t इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है? So whenever you have to calculate the maximum height, you calculate the vertex form. और उसका भी हिंट ये है कि आपको इसका अगर ये -3 है इसको इसका ऑपोजिट ले लेना है विच इज़ +3 एंड 3 बस इसमें पुट कर दो. वैसे मैं आपको इसका भी शॉर्टकट बता देती हूँ. अगर ये 3 पुट करोगे तो हाइट विल बी दिस ओनली 16 ओनली. क्यों? क्योंकि अगर आप 3 पुट करते हो
तो इट इज़ 0 स्क्वायर विच इज़ 0 प्लस 16, तो 16 यही आएगा, ये वाला नंबर जो बचेगा वही आएगा. सो 16 मीटर्स. सो व्हाट डिड वी लर्न कि अगर मैक्सिमम हाइट देखनी है तो उसमें आप जो आपका ये वाला नंबर होता है अल्फ़ाबेट के साथ उसका ऑपोजिट साइन कर देते हो, ऑपोजिट साइन, एंड ये वाला 16 इज़ द पर्टिकुलर हाइट, राइट. तो टाइम में वी हैव 3 seconds, दिस इज़ t, so this is 3 seconds and time is 16 meters. तो जब भी मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है, we just see the vertex form which is h, k, which is this particular number and this particular number. ठीक है. सो इफ यू कैन सी t इज इक्वल टू 3, जब आपने 3 पुट करा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस, सो 16 यूनिट्स. कैलकुलेट द टाइम एट विच इट हिट द ग्राउंड. नाउ वी विल राइट, जब वो हिट करेगी ना ग्राउंड, राइट, बहुत ध्यान से सुनना. इफ़ इट विल हिट द ग्राउंड तो आई कैन से हाइट विल बी 0, राइट. तो जो फंक्शन है वो पूरा वो 0 से इक्वेट कर दो. पूरा फंक्शन था t-3 होल स्क्वायर प्लस 16 को किससे इक्वेट कर दो, 0 से. वाई 0? बिकॉज अगर आपको देखना है कि कब हिट करेगा ग्राउंड को तो उसमें हाइट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. सो टाइम आपने ये 0 पुट करा इधर, एंड व्हेन यू पुट 0, जस्ट अ सेकंड, यस, व्हेन यू पुट 0 दिस 16 विल गो ओवर देयर, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है. एंड जैसे ये माइनस इधर हुआ, यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे दिस इज़ प्लस 16, राइट. आपने क्या करा, आपने सबके साइंस चेंज कर दिए. ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया, एंड ये प्लस था, तो इधर ये देखो -t-3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16, क्योंकि 16 इधर गया. फिर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आपने कट कर दिया, तो t-3 होल स्क्वायर इज 16. सो 16 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर है, राइट. तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए. सो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. सो t-3 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो t-3 इज इक्वल्स टू 4, 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा. सो t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स. सो व्हाट डिड वी लर्न कि अगर हमें टाइम निकालना है एट विच हिट द ग्राउंड, तो हिट द ग्राउंड का मतलब है हाइट 0, तो मतलब आप फंक्शन को किससे इक्वेट कर दोगे, 0. प्लीज़ राइट दिस नोट दैट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द hit the ground, तो hit the ground में height will be 0, function will be 0, ठीक है. Now very important, write down the equation of the graph after each transformation of height t. देखो reflection in the t axis, जब भी reflection होता है ना तो हमें बस कुछ नहीं करना होता, हमें बस signs change करने होते हैं. These are the notes for you which I have made. I'll even show it to you. Please write these. This one if you can see, reflection का मतलब होता है that it always negates every output value. So here it means that it negatives every output value. तो अगर function fx है तो उसका reflection will be minus fx, right. This should be very much clear. And then we have another thing. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ही है, ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी. तो अगर इसका मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे फंक्शन का, ये रहा पूरा फंक्शन, इसका आपने नेगेटिव कर देना. तो जब आपने ये वाला नेगेटिव, कोई इस नेगेटिव, दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तभी यहाँ पे कुछ नहीं है, एंड दिस पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. इन शॉर्ट इनके साइंस ऑपोजिट, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस. सो वी हैव दिस एज द रिफ्लेक्शन. एक और चीज़ आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन. देखो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शिफ्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ इधर जा रही है, हॉरिजॉन्टल, तो वी कॉल इट दैट एज वेल ओनली ना. सो हॉरिजॉन्टल यहाँ थी और यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो शिफ्ट हो रही है, राइट. सो वी हैव, इसका ना थोड़ा ऑपोजिट होता है, ये ट्रिक करता है लोगों को. बाय ट्रिक? बिकॉज इसमें अगर राइट है तो वो माइनस होता है, लेफ़्ट है तो वो प्लस होता है. मतलब राइट तो कॉन्सेप्चुअली पॉजिटिव होता है ना, बट हियर अगर वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, शिफ्ट है, आपको ये रूल लिखना भी पड़ेगा अपनी नोटबुक्स में प्लीज़, कि अगर हॉरिजॉन्टल है शिफ्ट राइट तो हमारा माइनस होगा और लेफ्ट है तो प्लस. इफ़ यू सी
अगर शिफ्ट राइट बाय ए, ठीक है, राइट बोला है, दैट मीन्स माइनस ए, टी को शिफ्ट करना है ए से राइट वर्ड्स, तो पहले अगर टी है राइट, इफ़ इट इज़ टी तो इट विल बिकम राइट में माइनस ए, इफ़ इट इज़ लेफ्ट इट विल बिकम प्लस ए। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, यही वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें उन्होंने बोला है शिफ्ट करना है 2 0 से, तो अब 2 0 समझो, 0 जो है उसका मतलब है कि अब कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो राइट लेफ्ट मूवमेंट बताता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है दैट इज़ वाई, वो आपको अप डाउन मूवमेंट बताता है। ओके, सो फर्स्ट में अगर आपके पास 2 है तो दैट मीन्स 2 इज़ 2 राइट, तो 2 राइट कैसे करते हैं, -2 करके, राइट। सो पहले फंक्शन ये था, तो इसमें बस कुछ नहीं करना, टी की जगह आपको क्या पुट करना है, t-2, सो t-2 पुट किया, बाकी सारा फंक्शन सेम है, तो इट विल बी -2 - 3 इज़ -5, तो यू हैव दिस एज द आंसर। लेट्स इवन सी फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन इन टी एक्सिस में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमने पूरे फंक्शन को बस नेगेटिव कर लिया, हियर द आंसर इज़ नॉट देयर, तो आई विल डू दैट। हमारा फंक्शन था ये वाला, दिस वन, सो -t-3 + 16, तो इस पूरे को नेगेटिव करना है क्योंकि ऐसे ही रिफ्लेक्शन होती है, तो माइनस का बन जाएगा प्लस, जो कि मैं ना भी लिखूँ तो इट विल वर्क, और प्लस का बन जाएगा माइनस, एंड वी हैव टू डू दैट ट्रांसलेशन एज वेल विच इज़ बाय 2 0, तो 2 0 का मतलब है 2 राइट, बट 2 राइट का मतलब क्या होता है, -2, तो t के फंक्शन में बस -2 पुट कर दो, तो इवन आई विल डू दैट हियर, यहाँ पे आई एम डूइंग, सो ये हमारा फंक्शन है, t की जगह आई एम पुटिंग -2, t-2, बाकी सेम, सो t-5 + होल स्क्वायर, तो हमारा ये हो गया पर्टिकुलर आंसर, राइट, बिकॉज माइनस तो सेम ही ना, -t-5 होल स्क्वायर + 16। अब इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए you need to solve this particular sheet, for which you will take a screenshot. Question number 1 is this, please take a screenshot, you need to solve this one. A stone is thrown upward from a roof, same है, okay, and this is the function, initial height before it is thrown, तो before it is thrown means time क्या put करना है, 0, and you need to calculate the value, ठीक है। देन इन सेकेंड क्वेश्चन डिटर्मिन द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में क्या करते हैं, जो हमारा ये होता है, दिस इज़ 4 सेकेंड्स, आंसर आ जाता है, -4 है तो +4 ऑफ कोर्स, सो दिस इज, आई जस्ट डू इट हियर, ये खुद सॉल्व करना है, दिस इज़ 4 seconds and this, the time will be automatically this 20, height will be 25, and I'm not able to write, so this will be 25 and the other one will be 4. Then 1.3 1.4 पूरा same है, 2 is all, question 2 is all same, so you will solve this on your own and I'll check it. Please take a screenshot and then do it.